ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट मेंशनिंग योर नेम, रोल एंड एड्रेस। Presently, I am doing my PhD from Nagaland University. Earlier, I had completed my BSc from Banda University of Agriculture and Technology in BSc Honors Horticulture. After that, I completed my Master in Vegetable Science from BCKB, West Bengal. And my hobby is kitchen gardening. ओके ओके, योर ग्रेजुएशन इज फ्रॉम विच प्लेस? Banda University of Agriculture and Technology, Banda. दैट मीन्स यूपी? Yes, sir. Bundelkhand region. बुंदेलखंड, ओके। एंड योर मास्टर्स फ्रॉम? BCKB, West Bengal. Bidhan Chandra Krishi एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बंगाल। एंड मोहनपुर, परस्यूइंग योर पीएचडी फ्रॉम? नागालैंड विश्वविद्यालय। Nagaland. That means you have an exposure of a very vast area, right? Yes, sir. So, what are the differences you are watching, observing in horticulture practices in these places? Majorly Sir, northeast India and your other places. Sir, basically, in my graduation time, when I am in Bundelkhand region, the farmer are generally focusing monocropping and they grow only legume and legume crops, pulses, and oil seed crops. But That when means the they're traditional crops. yes, sir, in their traditional way, but Hmm. when the university abolished and researchers and scientists make a revolution, now Bundelkhand shifting to the horticultural crop cultivation, especially arid fruit crop, kukur beets are the major crops grown right now in Bundelkhand. The protected cultivation of vegetable is also improving their farmer income with the help of scientists and researchers. And nowadays in Bundelkhand, good opportunity in case of citrus and date palm, fig and karoda. Especially semi-arid region, fruits are main focusing area, and they have giving the good result to farmers, contributing their income and I think you are comfortable in Hindi, yes, sir. more comfortable in Hindi, whereas I am Yes, going observing yours. Yours. Okay. yes, sir. Yes, sir. So you can express yourself in Hindi. Doesn't Yes, matter. sir. Okay, sir. Bundelkhand. Once there was a time, Bundelkhand was known as the suicidal section, a suicidal area for farmers. But Yes, sir. nowadays, Bundelkhand is raising its productivity in Yes, sir. agriculture and horticulture sector. What's the major reason? आपने समझ लिया प्रश्न को ना? Yes, sir. अब हिंदी में सर, इसको बताइए। फार्मर जो है वहां पर आजकल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे एक फोकस कर रहे समय हैं। था जब बुंदेलखंड में आमतौर पे खबरें आती थी किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जी सर। अब बुंदेलखंड से खबर आ रही है कि अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है उधर। जी क्या सर। कारण है इसका मेजर? सर, वहां के किसानों को जागरूक कराया गया, उनको हार्टिकल्चर क्रॉप के बारे में कितनी अपॉर्चुनिटी बुंदेलखंड में है वो उन चीजों से अवगत कराया गया, उनको फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, उनको फार्म पर केवीके के द्वारा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के द्वारा चीजें करके दिखाई गई और किसानों को जागरूक किया गया। और सर, आज यूपी में बुंदेलखंड ऐसा है कि सर, अकेले मटर के इन केस ऑफ पी, जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल पी। तो इन इसके केस पीछे ऑफ आपको बोलना ये है कि सर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी वो लगभग ठीक थी, ठीक यस है, सर। लेकिन जो आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नगण्य था। जो यस सर। हाल के वर्षों में बुंदेलखंड सुपर एक्सप्रेस हाईवे तथा इरिगेशन की बेस्ट मेथड्स वहां पे पहुंच जाने के कारण जो कभी यस सर। श्रापित थी जो क्षेत्र, आज वो वरदान बन चुकी है। यानी सरकार के द्वारा दिए गए जबरदस्त व्यवस्था के कारण वहां के यस सर। किसानों के साथ साथ जागरूकता एवं गवर्नमेंट स्कीम्स ने वहां के किसानों की किस्मत बदल दी। यस सर। ऐसे बोलना है, ठीक जी है? सर। यस जागरूक सर। करने का, आप जागरूक हम आपको कितना भी करें और भोजन नहीं मिलेगा तो जागरूक कहाँ से हो जाइएगा? यस सर। है ना? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका है। और उससे जो लिंक रोड्स जो पूरे गांव से गांव तक नेटवर्क फैला, वो और जी। इरिगेशन का बहुत अच्छा माध्यम वहां बन गया। यस सर। तो इसको फोकस करते हुए जो दो तीन स्कीम देख लीजिएगा जी बुंदेलखंड सर। का। जी ठीक है? सर। आप जी बताइए, सर। आप नॉर्थ ईस्ट में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं? जी सर।
नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट तो ऑर्गेनिक का वंडरलैंड है। यस सर। क्या कारण है उसका? और खास करके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में तो बहुत आगे है। सर मेजर कारण है कि सर जो है कि पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे, और जनरली जो लैंड्स हैं वो इतना स्लोपी है कि सर वहां पर कन्वेंशनल फार्मिंग ही लोग कर पा रहे हैं, हाईटेक अपना ही नहीं पा रहे हैं। और इन कन्वेंशनल फार्मिंग दे यूज ऑर्गेनिक इनपुट फॉर देयर प्रोडक्शन एंड अच्छा, मैंने जनरली। बोला कि बहुत स्लोपी लैंड है ना। यस सर। तो और स्लोपी सर लैंड पे जो एग्रीकल्चर होता है ट्राइब्स के यस द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? सर, जनरली झूम कृषि। झूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन? सर हिंदी में झूम कृषि, इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वेरी गुड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके द्वारा एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड को वहां से डिफॉरेस्ट करेंगे। जो जो ग्रासेस एंड अदर श्रब्स प्लांट होंगे उनको बर्न किया जाएगा। फिर वहां पर एक समय तक खेती करते हैं। जब वो भूमि अनउपजाऊ होने के कगार पर चली जाती है, फिर से वहां पे फॉरेस्ट क्रॉप का सोइंग कर देंगे और सेम चीजें वो जाके दूसरी जगह पे करेंगे। अच्छा, इसका पारंपरिक रूप से पता है उसमें बुआई कैसे होता था? सर इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जान लीजिए। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि डिफोरेस्टेशन करके या फिर प्लांटेशन खत्म करके, ट्रीज को खत्म करके, एक छोटे से स्लोपी लैंड पे लैडर्स नुमा खेत का विकास करेंगे, स्टेप वाइज लैडर नुमा। ठीक है। और ट्रेडिशनली सर उसमें जो मवेशी थे, जैसे बकरे, ये सब जो थे, गधे, ये सब छोड़ दिए जाते थे। जिसमें जो गड्ढे होते थे उसमें क्रॉप्स लगाया जाता था। 5 6 साल 7 साल तक कृषि करने के बाद उस भूमि को पुनः छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जिससे कि कुछ समय के बाद उसमें फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है, तथा फिर उसमें हो पाती है। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि बोलते हैं। यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बोलते हैं आप। पूछिए, मेरे तरफ से हो गया। ओके, अच्छा ये बताए आप जो बुंदेलखंड का रीजन है जिसमें कि मध्य प्रदेश और यूपी दोनों का पार्ट आता है, तो अभी कोई एक ऐसा कोई लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट जो कि बुंदेलखंड के पूरे एग्रीकल्चर के परिदृश्य को, ठीक है, बदल बदल के रख देगा? क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं वो चीज, नहीं पढ़ा हुआ है सर। बहुत बड़ा वो बुंदेलखंड के लिए प्रोजेक्ट है। सर अभी मतलब लास्ट ईयर। बुंदेलखंड का जो रीजन है, ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है वो कि वो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा या हॉर्टिकल्चर के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए सर बेहतर कौन है? ऑफ कोर्स सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ओके, क्योंकि वहां पे एरिड सेमी एरिड रीजन है, तो वर्षा वर्षा का भी एक लिमिटेशन है। तो उसमें यस। हम जो इरिगेशन का जो न्यूली मेथड्स है, डीप इरिगेशन एंड अदर्स के, उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं? जी सर। अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है इंडियन इंडियन इकोनॉमी में? रोल, 5 रोल बताइए, ठीक है, पॉइंट वाइज। इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ रोल बताना है। सर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट, increasing farmer income comparison to agronomical crop 3 to 4 times more, and demand of horticultural crop is more nowadays. अच्छा, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में क्या क्या हम लोग स्टेप लेंगे? सर इन्वायरमेंटल सर मॉडिफिकेशन में सर क्वेश्चन रिपीट प्लीज सर। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, यस उसमें हम लोग इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, यस उसमें यस क्या क्या आएगा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन के अंदर में? सर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो ये दोनों एक ही में हो गया, ये कैसे, बताइए। सर नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। अच्छा, जो माइक्रोबियल पेस्ट कंट्रोल में जो माइक्रोबियल की माइक्रोबियल एजेंट बताइए आप हमें, पेस्ट कंट्रोल के की माइक्रोबियल एजेंट। सर बवेरिया बवेरिया बैसियाना है। नहीं नहीं, वो पोलिन। वो एजेंट थोड़ी हुआ, उसके अंदर में एग्जांपल हुआ, आपको एजेंट बताना है फिर एग्जांपल बताना है।
सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। माइक्रोबियल एजेंट कौन कौन सा है पेस्ट कंट्रोल के अंदर में? ठीक है। सर एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, पॉलीन्यूक्लियर वायरसेस, वेरी गुड। वायरसेस और सर प्रीडेट माइक्रोबियल में तो सर एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई बैक्टीरिया। एंड पॉलीन्यूक्लियर वायरसेस। बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं ना। यस सर। फंगी को हम लोग एजेंट बोलते हैं ना, वायरस को हम लोग एजेंट बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या क्या आता है, फंगी में क्या क्या आता है, वायरस में क्या, ऐसे करके बताना होता है अरेंजमेंट में, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। सर बैक्टीरिया में बैसिलस है, फंजाई में ट्राइकोडर्मा, और न्यूक्लियर पॉलीवायरसेस का सर नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ हमने मैं। बताया कि आपका वेजिटेबल साइंस है। ओके। जी सर। और अदर भी आपने। अच्छा, ये जो बताना है आपको, जो इसके जो हार्मफुल स्टेज है आपका साइट्रस साइला का, ठीक है, साइला का, ओके, वो कौन सा यस है हार्मफुल स्टेज? सिट्रस सर एडल्ट फ्लाइज एंड सर कैटरपिलर्स एंड फ्लाइज। हार्मफुल स्टेज ऑफ सिट्रस साइला क्या है, कौन सा है? सर कैटरपिलर स्टेज, लार्वल स्टेज। तो लार्वा स्टेज बोलेंगे ना। यस सर। अच्छा, ये बताओ कि जो मैंगो ट्री में जो ग्रीस पेंटिंग होता है, ठीक है, वो जी किस सर। चीज को कंट्रोल करने के लिए होता है? सर ग्रीस पेंटिंग जनरली मिलीबग को रोकने के लिए किया जाता है कि वो तने पर क्लाइंब ना कर पाए। ओके, वेरी गुड। कैबेज पीला बिटल का साइंटिफिक नेम क्या है? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जी। अच्छा, बीटी कॉटन के अंदर में जो रेजिस्टेंस, मतलब कि कॉटन के अंदर में जो उसका जो मॉडिफिकेशन किया गया, वो किस चीज के रेजिस्टेंस के लिए किया गया है? सर बोरर के लिए, जो कॉटन का सूट एंड फ्रूट बोरर है, उनके लिए किया गया है। कौन से पेस्ट है बोरर? सर सर सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ कॉटन, पिंक वॉलवर्म जिसको बोलते हैं सर। वेजिटेबल क्रॉप्स में आएंगे तो सर उसको सूट एंड फ्रूट बोरर बोल देते हैं, पिंक ठीक है। वॉलवर्म के लिए सर। क्वेश्चन आपसे लेते हैं, जो ग्वाभा के अंदर में जो ब्राउजिंग होता है उसका, वो किसके डिफिशियंसी के कारण होता है? सर गोवा में ब्रोंजिंग जनरली जिंक जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये आपका अच्छा है। सर वो वन क्वेरी कि